agriculture session. आप लोग इंडस्ट्री वाले हैं तो ऐसा मत समझिए कि एग्रीकल्चर के बिना काम चल जाएगा। सोयाबीन नहीं उगेगी तो प्लांट कैसे चलेंगे, और एग्रीकल्चर कैसे होगी बढ़िया और क्या करना चाहिए, वो बताने के लिए हमारे पास दो बड़े वैज्ञानिक और जो सोयाबीन से इतने सालों से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर के.एच. सिंह सर डायरेक्टर हैं नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सोयाबीन। के.एच. सिंह सर, आर यू हियर? Yeah, and Dr. R.K. Mathur, Indian Institute of Oilseed Research, Government of India. So both are, I don't know how big experts they are, but they are really very big experts. They will tell us about, I think, के सिंह बात करेंगे कि सोयाबीन की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, और प्लीज इसमें इंटरेस्ट लीजिए क्योंकि सोयाबीन की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी तो अपना काम नहीं चल पाएगा। एंड डॉक्टर माथुर ऑल्सो, माथुर साहब बात करेंगे अबाउट नेशनल मिशन और उसमें हमको क्या करना है। तो ओवर टू यू सर। Good afternoon. Thanks to the organizers for invitation and also giving the opportunity. We have been listening since the morning the different aspects of this conclave. And just in the panel discussion also we were discussing about the sustainability. So there are so many things, but until unless we do not have the production of soybean, nothing is sustainable. And that too should be cost effective, not only to the industry, but to the farmers also. Morning session में मेरे साथी डॉक्टर सुरेश इटापू ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया about the importance of the soybean, और उसमें अब डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, और बिकॉज all belong to the industry, so you are already well aware about the importance, how many products are prepared, what is the importance of the value addition in the soybean, how did it was introduced, what were the purposes, and how the Indore basically, the industry at Indore supported the expansion of soybean area in the nearby central India. जैसा पाठक साहब ने कहा, मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है और जो चुनौती आज बेसिकली जो हम कहते हैं more than 5 million farmers, they are also facing, industry also facing, is that of the yield in this country. Friends, as you all know, the soybean is being reported from the more than 100 countries. And out of that, the 5 countries which contribute a lot, more than 85%, India ranks at the 5th position in regard to the total production. But we are far behind about the productivity. There have been so many reasons about this, why we are lacking behind in the productivity. But we will look in this presentation particularly that what are the expectations and are we really competent enough to reach the expectations which are being put before us. So with this, you please go the next one. Can you go for the next slide? बेसिकली अगर आप देखें कि भारतीय जो कृषि अनुसंधान परिषद है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, they have put this soybean as an oil seed crop. And you all know
that the primary product is the protein-based products. Oil is the secondary product from the soybean. So there is just many times we face a kind of challenge there that generally they talk about the oil production, how much we are contributing in their terms, and neglect the other parts, which is more important if we talk about the soybean, that is the protein-based products. Looking the import of vegetable oil, the last year we imported more than 1.5 lakh crores of the vegetable oils, and out of that the importance you see, the 29% share was from the soybean oil import. But fortunately, we also exported more than 7,000 crores of rupees of this seed meal, and in that way 17% of the total soybean oil import was offset. So this is good thing. But the scenario has been changing. We are looking in the last many years that every year our export is declining. There are many reasons for that also. But here the more important is that how we become the competitive at the global level to produce the soybean at lower cost and able not only to suffice our domestic requirement, but also to make its export potential enhancement. Next, please. Can you go the next? Look here the importance. I am not going in detail. We already have discussed about the importance. But coming to the economic importance of soybean. साथियों मैं बताना चाहूँगा कि जो भारत की इकोनॉमी है, जो आज 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, मोर देन $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी इंडिया की है, और उसमें अगर आप देखें कि सोया का टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड it is more than 0.22%, which is again a very big figure if you talk about the national level contribution of the soybean. लगभग more than 70,000 crores रुपीज़ का ग्रॉस वैल्यू ऐड करती है सोयाबीन पर एनम, और अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में बात करें तो इट्स कंट्रीब्यूशन इज 1.2%. दैट इज अगेन ए वेरी वेरी हाई फिगर. द सिंगल कमोडिटी having a contribution of 1.2% to the total agricultural gross domestic product at the national level. अगर हम बात करें आफ्टर द वैल्यू एडिशन, तो यह जो अमाउंट है विच वी टॉक अबाउट दैट $8 to 9 billion we are contributing, that become to the 11 to 12 billion. So this is the value of the soya to the national economy. और अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूं इन द स्टेट लेवल पर, तो मध्य प्रदेश की जो इकोनॉमी है, जो कि पूरे कंट्री में आज 10वें नंबर पर है एमपी एमंग द डिफरेंट स्टेट्स, और इस इकोनॉमी में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है सोयाबीन का, दैट इज़ 4.5%. और अगर हम इसमें बात करें केवल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में, तो 15% जो इकोनॉमी है नेशनल लेवल पर 4.5. हेयर इन द एमपी स्टेट वी कंट्रीब्यूट टू ऑलमोस्ट 15% टू द टोटल एग्रीकल्चरल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स. So this again highlight that how important the crop is for the Madhya Pradesh and also for the national level. कई बार हमें different perceptions सुनने को मिलते हैं. There are many lobbies who say that soybean is not viable in this country. We should replace it by some other more commercially benefit crop. अगर मैंने यहाँ जो डेटा आपके सामने प्रेजेंट किया, इफ़ यू लुक एट दैट, मध्य प्रदेश में जो टोटल एरिया है, इसमें व्हीट का 7.7 मिलियन हेक्टेयर्स है, एंड सोयाबीन इज़ द नेक्स्ट वन विद ऑलमोस्ट 6 मिलियन हेक्टेयर्स. और बाकी की कोई भी क्रॉप आप देख लीजिए, इवन इंक्लूडिंग द पैडी और मेज और ग्रेन, दे आर फार बिहाइंड देन दीज टू क्रॉप्स.
और सोयाबीन और व्हीट, अगर आप सिंगल कम्युनिटी में बात करेंगे तो परहैप्स वी विल नॉट डूइंग द जस्टिस, बिकॉज in this Madhya Pradesh, soybean wheat is a cropping system. More than 85% farmer, they grow wheat after soybean only. So this is the second largest cropping system in India after paddy and wheat. So this again reflects that how important is the soybean wheat and the soybean itself is. अगर आप सस्टेनेबिलिटी की बात करें और वीट का प्रोडक्शन विदाउट सोयाबीन लें, फॉर एग्जांपल इफ यू गो फॉर द मेज बीइंग रिप्लेसिंग द सोयाबीन एंड गोइंग टू द अनदर क्रॉपिंग सिस्टम मेज वी, व्हाट विल हैपन, वी विल लूज आवर सॉइल फर्टिलिटी. मेज कांट बी द सस्टेनेबल क्रॉपिंग सिस्टम for number of years. If you see the pattern in the United States, in all those states, what the farmers are practicing is the diversification of the crop. One year they grow soybean, in the same field the next year they grow the maize. And they take the only one crop in 1 year. So out of the 365 days, they are taking only one crop. In Madhya Pradesh, in particularly this region, farmers are taking 3 crops in 1 year. Our varieties which we have bred here mature within 95 days. So having a less than 95 days duration with such a high productivity that I will show you in the next slides, we are more competitive than any other country on per day productivity basis. So these are the facts which we must understand whenever we are talking that soybean is not viable. These are not the justified reasons. Soybean is certainly, and there is none other crop which can replace the soybean from such a large area. We have been looking for the last 5 decades. आप कोई भी क्रॉप देख लीजिए पिछले 50 सालों में मध्य प्रदेश में सोयाबीन को रिप्लेस करना कई कारणों से मुश्किल है. और सोयाबीन के अगर आप हिस्ट्री पे जाएं और ये देखें कि जब सोयाबीन 1970s में यहाँ इंट्रोड्यूस हुई तो उस टाइम बहुत सारी क्रॉप जो कि जैसे कि कॉटन और सोरगम which were less remunerative in comparison to soybean, those were replaced by the soybean. Still, if you go to the Gujarat and Maharashtra, you will see soybean is replacing the groundnut, soybean is replacing the cotton also. Why? Because it is more sustainable than all other these crops. You can see this graph. The graph which have been shown in the linear reflection, this is the yield actually. So yield has remained highly unsustainable due to various reasons, particularly the weathers. But the area has been continuously increasing. We are lying between 12 to 13 million hectares in this country. Sometime area, for example, this year the area in Madhya Pradesh is comparatively declined, but in the other states, for example, Maharashtra and Gujarat and Karnataka, it is increasing. So similar are the trends of the yield also. अगर मैं पैदावार की बात करूं तो मित्रों आपको जान करके बड़ा आश्चर्य होगा कि इसी कंट्री में हम जहाँ नेशनल एवरेज या 11 कुंटल का है वहाँ हम 40 कुंटल भी कुछ राज्यों में ले रहे हैं. अगर आप नॉर्थ ईस्ट में इम्फाल की बात करें, मणिपुर की बात करें तो जो यील्ड के आंकड़े हैं वो हमें बताते हैं कि सोयाबीन की 40 कुंटल तक यील्ड वहाँ आती है. सेम महाराष्ट्र में अगर हम देखें, मैं आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूँगा कि माननीय कृषि मंत्री जी जो 26 जून को हमारे इंस्टीट्यूट में आए और उनका मेन एम्फेसिस यही था कि सोयाबीन की यील्ड को कैसे बढ़ाया जाए. तो उस परिचर्चा में जिसमें मुख्य रूप से किसान भी सम्मिलित थे, महाराष्ट्र के एक किसान ने इस बात को डायस पर आकर के बताया कि ही हैज़ बीन टेकिंग मोर देन 40 क्विंटल्स इन 1 हेक्टेयर.
उन्होंने तो उदाहरण दिया 50 कुंटल तक लेने का। सो द टेक्नोलॉजी इज ऑलरेडी अवेलेबल। सीजन में हम लोग उनके यहाँ गए और हमने खुद वेरीफाई किया कि जो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस जो सोयाबीन की पद्धति वहाँ अपनाई जा रही है, वहाँ 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर से ज़्यादा की पैदावार ले रहे। केवल एक ही नहीं, बहुत सारे किसान भाई। तो क्या कारण है कि सब लोग नहीं ले पा रहे और क्या हमें करना चाहिए? मेरे इस प्रस्तुतिकरण का उद्देश्य यही है कि ये जो द गैप विच इज़ वेरी लॉन्ग स्टार्टिंग फ्रॉम 11 कुंटल टू 40 कुंटल, हाउ वी कैन ब्रिज दिस गैप। और यहाँ हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। ये टेक्नोलॉजी केवल एक इंस्टीट्यूशन के माध्यम से या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से पूरी नहीं होगी। वी हैव टू कम टुगेदर एंड हैंड इन हैंड वी हैव टू वर्क फॉर ईयर्स विद फार्मर्स। इसमें इंडस्ट्री का सपोर्ट चाहिए, इसमें एनजीओज का सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हमको हमारे फेवर में चाहिए। तो सर्टेनली विद द अवेलेबल टेक्नोलॉजी वी कैन रीच अप टू द 40 कुंटल पर हेक्टेयर यील्ड प्रोडक्टिविटी। बहुत बार ये बात होती है कि जो से देश में सोयाबीन आई 1970s के बाद, तो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज वी बिलोंग टू द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? फ्रेंड्स, यू विल सी कि when this crop was introduced in India, our productivity was very low, hardly 4 quintal per hectare at that time. And today at the national level, we harvest 11 to 12 quintal per hectare. So that was the enhancement only due to the intervention from the scientific research and development policies. और यहाँ आप देखेंगे कि शुरू के दिनों में जो सबसे बड़ी समस्या थी वो शेटरिंग की हुआ करती थी। क्रॉप में मैच्योरिटी के समय जितना हार्वेस्ट करते थे उससे ज़्यादा पॉट शेटर होकर फील्ड में ही गिर जाते थे। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन एट दैट टाइम, जिसको इकोनॉमिस्ट ने एनालिसिस की और उन्होंने कहा कि मोर देन 30,000 करोड़ पर एनम की जो सेविंग हुई, दैट वाज ओनली ड्यू टू ब्रिंगिंग ए शेटरिंग रेजिस्टेंट जीन्स इन अवर सोयाबीन वेराइटीज। तो इस टेक्नोलॉजी के कारण ही हम 400 का जो हमारा एवरेज हुआ करता था उससे बढ़ के 700, फिर 700 से 1100 पहुँचे। और आज जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम में हमारे रिसर्च के डेटा हैं वो बिल्कुल क्लियर कट ये इंडिकेट करते हैं कि वी हैव द टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस मोर देन 20 कुंटल पर हेक्टेयर विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। दूसरा जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन रहा थ्रू द रिसर्च, वो गुड एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस का था। क्योंकि आप सीड ला सकते हैं, सीड लाने के बाद आपको अपने वेदर के हिसाब से, अपनी क्लाइमेट के हिसाब से उसका एडेप्टेशन करना होगा और अपने ही कंट्री में वैरायटी ब्रेड करनी पड़ेंगी। दूसरे, हमारे पास उस तरीके की मशीनरी नहीं है। हमारा लैंड होल्डिंग साइज इज़ डिफरेंट दैन द यूनाइटेड स्टेट एंड ब्राज़ील, जहाँ 1000 हेक्टेयर्स के फार्म्स हैं, वी हैव लेस दैन 1 हेक्टेयर लैंड होल्डिंग साइज। तो हमें कस्टमाइज मशीनरी अलग चाहिए। हमारी वेराइटी विच फिट इन आवर क्रॉपिंग सिस्टम। जो यूनाइटेड स्टेट्स में अगर 120-150 डेज की वेराइटी है, दैट विल नॉट सूट टू आवर फार्मर्स नीड। We need the variety which matured in less than 95 days. So farmer can grow the next crop like potato, and after harvesting the potato, they can go for the wheat also. So 300% cropping intensity. You can't make the comparison of the yield with 300% cropping intensity with those countries which are having hardly 100% cropping intensity. So these are the facts which we need to keep in the mind when making such kind of notice. We also developed the microbial consortia, और आपको मैं बताना चाहूँगा कि these are our native microbes, Bacillus aryabhattai, we have now in the liquid formulation also. This is a very, very effective technology, going through the seed treatment, which is very cheap and very effective.
and this is the one technology which can bring more than 10% yield enhancement if it becomes the mandatory to sell the seed only after seed treatment. These are the varieties which we produced over the time. 1970-80 के बीच में हमने 8 वेराइटीज निकाली और पिछले 2020 के बाद अभी तक हम अलग अलग जो हमारे राज्य हैं उनकी आवश्यकताओं के अनुसार मोर देन 57 वेराइटीज हम ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं और इनकी प्रोडक्टिविटी भी पुरानी वेराइटीज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा है। अगर आप इस ग्राफ पर थोड़ा सा ध्यान दें तो यू विल सी कि हमारी जो यील्ड है वो कैसे बढ़ी है ओवर द टाइम। 1970s में वी हैव हार्डली 400 किलोग्राम यील्ड। 1970 और 90 के 2 डिकेड्स में वी रीच्ड अप टू 7 क्विंटल्स पर हेक्टेयर एंड आफ्टर 1990 to 2015 we touched 1000 quintal milestone, and after that we reached up to the 12 quintal also. But since a long time, for more than 3 decades, we are stagnating between 11 to 12 quintal per hectare. Why? What are the reasons why we are not overcoming these challenges? We have to understood these all things. You can see in total we have developed more than 180 varieties. But even then, those who understand the genetics, those who understand the genetic base, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि because the crop was not native to the India, we introduced the entire germplasm from United States. So the earlier varieties which found the base of the soybean in this country, they contributed more than 70%. और जब कुछ ही वेराइटीज़ का ब्लड आता है तो नैरो जेनेटिक बेस होने के कारण उसका एडेप्टिबिलिटी एडॉप्शन पर इफेक्ट आता है एंड दिस काइंड ऑफ मटेरियल बिकम्स ससेप्टेबल टू मैनी बायोटिक स्ट्रेसेस। जो चैलेंजेज आज भारत में किसानों के समक्ष हैं, एबायोटिक स्ट्रेस कभी कभी, क्योंकि मानसून सीजन की फसल है, कोई भी हो, नॉट ओनली सोयाबीन, आप कोई पल्स भी लगाएंगे तो क्या होगा कि कंटिन्यूस रेनफॉल पैटर्न इज नॉट वेरी यूनिफॉर्म इन इंडिया। समटाइम देयर इज ए कंटिन्यूस रेन्स फॉर 2 weeks 3 weeks and then there is a long gap drought spell of more than 2 weeks 3 weeks sometime. In 22 we saw a very long spell of the drought in Maharashtra and suddenly our productivity declined. So those kind of challenges are there. बायोटिक स्ट्रेसेस सबसे बड़ा जो चुनौती आज भारतवर्ष में उत्पादकता के मामले में आई है उसका कारण बीमारियां हैं। जो आज फसल में बीमारी आई है, आप देखते होंगे सोयाबीन के फार्मर को, आप देखिए कि जब तक फ्लावरिंग नहीं होती 40 दिन तक क्रॉप बहुत अच्छी और हेल्दी रहती है एंड वी ऑलवेज एक्सपेक्ट एट दिस टाइम वी विल हार्वेस्ट वेरी गुड यील्ड। But suddenly after the flowering, when the reproductive phase starts, the number of diseases, the different kind of inoculums are there, they infect and suddenly plants start to die. And we do not have any effective chemical solution for that. तो ये जो चुनौतियाँ आई हैं और उसके कारण हैं कि पूरे सेंट्रल इंडिया में हम पिछले 40 सालों से 50 सालों से उन फील्ड्स में सोयाबीन सोयाबीन सोयाबीन। अगर हम डाइवर्सिफिकेशन नहीं करेंगे तो यही होता है कि एक बार बीमारी आई, इनाकुलम मिट्टी में मिल गया, वही सॉइल में बना रहता है। अगले साल जैसे ही फिर हम सोयाबीन ग्रो करते हैं तब वो और ज़्यादा बड़े पैमाने पर बीमारियों का कारण बनता है। ये जो चुनौती आई है इसके लिए हम अनेक प्रकार की टेक्नोलॉजी, जैसे आजकल आपने सुना होगा कि हम लोग जीनोम एडिटिंग पर काम कर रहे हैं और जीनोम एडिटिंग के माध्यम से जो मेजर बीमारियां हैं जैसे राइजोक्टोनिया एरेब्लाइट है या एंथ्रेक्नोज है या येलो मोज़ेक वायरस है, बहुत कॉमनली फैलता है बड़े लार्ज स्केल पर, तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर ऑल दोज डिजीजेज ऑल्सो।
फिजियोलॉजिकल कॉन्स्टेंट्स हैं। मशीनरी की बात मैंने आपसे की कि हमें बहुत बड़ी मशीनरी की ज़रूरत नहीं है, हमें ऐसी कस्टमाइज मशीनरी बनाने की ज़रूरत है। और यहाँ इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल हो जाता है, वो आर इन्वॉल्व इन द मैकेनाइजेशन, कि हम अपने किसान की आवश्यकता और उनके पास जो स्मॉल लैंड होल्डिंग साइज है उसके अनुरूप ही मशीनरी का निर्माण करें। गवर्नमेंट से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो फार्मर्स मशीनरी को ड्यू टू हाई कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए गवर्नमेंट अपने किसी कम्युनिटी लेवल पर, जैसे विलेज लेवल पर, ये मशीनरी उनको सब्सिडाइज रेट पर उपलब्ध कराए। सीड का एक बहुत बड़ा इशू है। अगर आप सॉइल हेल्थ की बात करें, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं लेकिन एग्रीकल्चर के बारे में भी ज्ञान रखते ही हैं, कि सॉइल की फर्टिलिटी के लिए ऑर्गेनिक कार्बन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। और सोलिड्राइड बहुत अच्छा काम कर रहा है टू द रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। अगर हम 0.5 से कम कंटेंट की सॉइल में कोई भी क्रॉप लें, तो आप वो जो एक्चुअल पोटेंशियल है दैट कैन नॉट बी रियलाइज्ड। दूसरी कंट्रीज़ में जहाँ क्रॉपिंग इंटेंसिटी बहुत कम है और वेदर फेवर करता है, वहाँ अप टू 1% का ऑर्गेनिक कार्बन है। और ये इतना बड़ा डिफरेंस डालता है कि क्रॉप की हेल्थ शुरू से ही दैट इज अफेक्टेड बाय द ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट। तो यहाँ हमें अपने इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन जैसे सोलिड्राइड है या अदर NGOs who are working really on the reclamation of the soil health. Also we need the government policy here to reduce the inoculum biomass which have been built over the years in our soils. अगर हम ट्राइकोडर्मा की जो स्ट्रेन्स हैं उनका लार्ज स्केल पर एप्लीकेशन करेंगे, तो वी कैन कंट्रोल दोज फंजाई विच आर क्रिएटिंग द हैवॉक्स इन फॉर्म्स ऑफ द डिजीजेस। वीड्स की प्रॉब्लम है, बिकॉज बीइंग द क्रॉप ऑफ मानसून सीजन, ऑल क्रॉप्स आर हाईली infested by the weeds, but certainly we have certain very effective herbicides here. The need is how to apply them. Diseases I already have discussed. Insects are certainly there. Number of so many insects that affect the crop. But here also the management practices are available. If farmers are really alert, they can control the losses being caused by the insects. There are so many new diseases are coming on a very large scale. Particularly you might be hearing many times the yellow mosaic virus, charcoal rot which entirely damage the crop, aerial blight, anthracnose, collar rot, and they are very specific to state also. If you go to the Uttarakhand, you will find another disease like frog eye leaf disease. Here you go to Karnataka, you will find the rust disease. So they are sporadic, but they are present. But the major diseases are these, and we are working to find out the solution against these diseases. इसी के साथ साथ फिजियोलॉजिकल कॉन्स्टेंट्स भी हैं। सोयाबीन जो क्रॉप है, यू विल नो दिस इज कॉल्ड फोटो सेंसिटिव, यानी डे लेंथ का इसकी मैच्योरिटी पर और इसकी यील्ड पर बहुत इन्फ्लुएंस होता है। और इसलिए हमें ऐसी वेराइटी डेवलप करनी पड़ती हैं विच आर सुटेबल फॉर ए सर्टेन रीजन। हैविंग ए वेरी वाइड एडॉप्शन ऑफ ए वेराइटी, इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट ड्यू टू दिस फोटो सेंसिटिव नेचर ऑफ सोयाबीन। यहाँ मैंने थोड़ा सा आई हैव ट्राइड टू शो यू द पोटेंशियल ऑफ आवर latest release variety on a very large scale. So these are the average yields. You can see almost all varieties are having more than 20 quintal per hectare yield, and that can be translated on a larger acreage on the state basis. What is the action plan? How we can enhance our yield from the existing levels of 11 quintal per hectare to attain the 30 quintal or even more? So
in the research we already are working on the breeding for multiple disease resistance. Earlier we actually worked to develop the resistance against specific diseases, but that technology doesn't work. अगर हमारी एक वेराइटी येलो मोज़ेक के लिए रेजिस्टेंट है और आया एंथ्रेक्नोज तब भी ख़त्म हो जाएगी, या आया चारकोल रोड तब भी ख़त्म हो जाएगी. सो वी हैव टू डेवलप इस रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑल डिजीजेज इन ए सिंगल वेराइटी. सो दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट. We are also using the biotechnology. We have identified the genes and markers for the yellow mosaic virus. Already a program is there. We have developed 2 varieties which are resistant to yellow mosaic using this technology. Are deploying GM technology, weed management, but actually the policy of government, the India government doesn't allow the GM technology. So we are working to the alternate technology in this field. And we are now focusing on the genome editing rather than going on the GM, improving existing variety for multiple disease tolerance, drought and water logging. We have developed few varieties which can sustain even the long drought spells also. Coming to the policies, किसानों के सामने बड़ी समस्या है कि मंडी में प्राइस कम है. So we have a request that this policy of Bhavantar, it should be adopted by the government, and I am really thankful to the Madhya Pradesh government. This time they have already announced Bhavantar scheme, so farmers at least are ensured now the procurement at the MSP. Seed का बहुत बड़ा इशू है being the 2 regions. सोयाबीन में एक तो सीड रेट बहुत ज़्यादा यूज होता है, ओवर देन 1 क्विंटल पर हेक्टेयर, और दूसरे जो इसका मल्टीप्लिकेशन रेशियो है इट इज़ वेरी लेस, फ्रॉम 1 to 15 क्विंटल ओनली. अगर हम दूसरी क्रॉप्स में देखें जैसे वीट है तो 1 क्विंटल से आप 50 क्विंटल लेते हैं. मस्टर्ड में आप देखें तो 1 क्विंटल से 250 क्विंटल का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है एक साल में. तो यहाँ बहुत नैरो मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से जो नई वैरायटी का सीड है उसे किसान तक पहुँचते पहुँचते 10 साल लग जाते हैं, और जब तक वो वैरायटी उस फार्मर के पास पहुँचती है तब तक वो रेजिस्टेंट वैरायटी भी ससेप्टेबल हो जाती है. तो जो इम्पैक्ट आना चाहिए था वो इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता. तो हमने उसके लिए भी एक्शन प्लान बनाया है, और उसमें हम इंडस्ट्री से भी वी एक्सपेक्ट देयर कोऑपरेशन एंड टू कम फॉरवर्ड, क्योंकि जब तक सीड से हम उन सेचुरेट नहीं कर देंगे लेटेस्ट वैरायटी के सीड से, तब तक जो ये लेवल है जो आज 11 क्विंटल पर स्टैग्नेट कर गया है ये ब्रेक नहीं होगा. मार्केट लिंकेजेज की बात है और यहाँ बहुत सारे लोग उस संबंध में चर्चा कर रहे हैं. We also require the government to make the soybean part of government nutrition schemes like midday meal, just to create the awareness and to create the demand. Also the marketplace outlets for FPOs and soya food products. Soil health cards, just to again to reduce the disease inoculum, and the seed treatment through the different microbial consortia as well as using the trichoderma and other technology here. So these are the in summary how we can achieve this. But the major my emphasis is on the seed production and ensuring the availability of the latest real variety seed to the farmers. यहाँ we have just prepared one plan how we can reach with the 5 lakh or even more than 5 lakh quintal seed in the 4th year to the farmers. So if we start from the 10 quintal seed during the time of release of a new variety and using the off season, we can multiply up to the 100 quintal in the same year, and this 100 quintal can be multiplied to 1000 quintals in the second year. Third year, with the support of the National Seed Corporation and all these, we can go up to the 10,000 quintal of the foundation seed, and this can be multiplied to the 1 lakh hectare quintal, which will be sufficient for more than 1 lakh hectare.
And in the another year, if we multiply this 35 to 35, we can reach up to the 10 lakh quintal seed. In the fifth year, that means the seed of a new variety will reach at least up to more than 5 lakh hectare area. That will reflect the impact of the latest varieties. So here, the scope is for all, for the seed corporations, for the private parties, which will come in the seed production program. And this is certainly a very profitable venture also. How the industry can play a role here? We need the industry linkages in the research and development. In fact, the name of the session is agriculture, but basically agriculture is everything. The industry is also the part of agriculture. We are talking the industry which is based entirely on the agriculture. So this session is basically the impact of the research and development. I'm talking what the research can contribute here. So industry has to come forward, and we also request to support us the different kind of projects which suits to the industry, and also demand the fund under corporate social responsibility that perhaps will serve the purpose to enhance the yield and to bring the sustainability, and also the establishment of industry in non-traditional areas. There are many states which have now the demand to create the soybean. For example, we did one study and we found that Madhya Pradesh, in comparison to Madhya Pradesh, UP is more suitable for soybean production. Assam is more suitable. Maharashtra is already that is happening there. Their yield productivity is high. But why they are not growing? The main reason is because there is no market. There is no industry. असम सरकार के रिप्रेजेंटेटिव से अभी हमने पिछले वीक बात की, तो उनकी भी मेन प्रॉब्लम यही है कि फार्मर ग्रो तो करना चाहता है, दे वांट टू रिप्लेस द पैडी, बट दे डोंट हैव द इंडस्ट्री, सो हु विल बाय दैट? So industry can install the plants in those states which are coming up with the soybean production. Premium price policy for food grade soybean. मॉर्निंग में अभी मैं सुन रहा था डकवर्थ साहब का जो सेशन था, एंड इन दैट वे इफ़ यू सी वी ऑलरेडी हैव डेवलप्ड 2 वेराइटीज विच आर फूड ग्रेड वेराइटीज. पाठक साहब आ रहे हैं, आई अंडरस्टैंड the time limit. I think this is my second last slide. Trademarking for soya foods. This is again very, very important. This is the last slide here where we have made the future projections of the soybean area, total production and yield. Starting from the 23-24 where we have almost, this was the year when we have 15 million ton production. And 1170 kilogram was our productivity. By 2030, our projections are that we will achieve the 17 quintal average yield at the national level. Area will remain almost static, and our total production will go up to 22 million tons. By 2047, which is being called as the Amrit Kaal, so we will reach up to the 40 million ton, the total soybean production with a productivity as high as 30 quintal per hectare. So with this, thank you so much for patience hearing. Thank you so much. Thank you so much, K.S. Singh, sir. It was a wonderful session. He shared knowledge about the soybean productivity and how we can enhance it. Now, ladies and gentlemen, let's move forward. We have another delegates. Put your hands together for Dr. R.K. Mathur, sir, Director, IIOR. थोड़ी जोरदार तालियां हो जाए, मुझे तालियों की आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही हैं. Yes, ladies and gentlemen. आप सभी को नमस्कार. It is lunch time. Before lunch, probably it will be easy also.
थैंक यू वेरी मच पाठक साहब फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस प्रोग्राम। यहाँ आके काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि बिजनेस वालों के साथ हमारा इंटरेक्शन थोड़ा कम रहता है। सो अभी आप लोग काफ़ी बिजनेस में भी है, बट एट द सेम टाइम ये बिजनेस इज डन इन पार्टनरशिप मोड, व्हाट पाठक साहब ने बोला है, दैट विल बी रियली गुड। इट इज़ जस्ट a system of coexistence of the industries along with the farmers and allied industries. So मैं जो थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी क्या पॉलिसी बनाई है, एंड फॉर्चुनेटली आई वाज इन्वॉल्व इन NMO नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल पाम एज वेल एज ऑयल सीड प्रोग्राम बोथ। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इन दोनों ही प्रोग्राम में गवर्नमेंट ने काफ़ी है जो कुछ है जो इन्वेस्टमेंट का भी सोचा है, और हमने जो स्ट्रेटेजी सजेस्ट की थी उसको भी काफ़ी हद तक है जो उन्होंने अडॉप्ट करके आगे फॉलो कर रहे हैं। यस, सो आप सब जानते हैं कि जो 9 ऑयल सीड्स हैं जो कि जो एनुअल क्रॉप्स रहती है उसमें जो अभी प्रायोरिटाइज कर दिया है कि वी हैव टू प्रायोरिटाइज एज पर अवर रिसोर्सेज। सो सोयाबीन, ग्राउंडनट, रेपसीड, मस्टर्ड, सनफ्लावर, सिसम, इनको प्रायोरिटाइज किया। डजंट मीन कि दूसरी क्रॉप्स को प्रायोरिटाइज नहीं किया गया है, लेकिन हमें ज़्यादा इम्फेसिस उनको देना होगा जिससे हमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और उसके साथ साथ अगर आप देखते हैं कि ये जो ग्लोबल अगर सिनेरियो भी आप देखते हैं कि सोयाबीन का क्या चल रहा है, आप लोग सब ज़्यादा जानते हैं, या अदर ऑयल सीड्स का क्या चल रहा है, या एनोमियो ऑयल पाम में क्या चल रहा है, ऑयल पाम का कितना एरिया हो गया है। वंडरफुल प्रोग्राम हैज़ बीन डिवाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड आल्सो। ओनली थिंग इज़ हमें थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा और देखना होगा कि हम मिलके क्या कर सकते हैं। तो इसी के साथ अगर आप जो एनुअल ऑयल सीड की बात करते हैं तो आप जानते हैं ज़्यादातर ये रेनफेड कल्टीवेशन है और जो रिसोर्स पुअर सिचुएशन में लगाते हैं। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की जो फॉलो होता है, न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी का इसमें जो थोड़ा कम रहता है, वाटर रिच एफिशिएंसी इसमें कम रहती है। सो अंडर सच ए नेगेटिव एनवायरनमेंट अगर आप ऑयल सीड ग्रो करते हैं तो उसके अंदर है जो आपको डेफिनेटली यू टू थिंक ऑन दैट। और वही हमने जो गवर्नमेंट को, सेक्रेटरी साहब को भी सजेस्ट किया था कि कुछ है जो इरीगेटेड एरिया आप इसके लिए रिलीज़ करिए ऑयल सीड्स के लिए। आज हम वीट और जो राइस के अंदर हमें जो सेल्फ सफिशिएंट हो गए, रादर हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से कुछ 10% एरिया आप ऑयल सीड को दीजिए जिसमें अंडर कंट्रोल कंडीशन में हमें जो वी कैन कम आउट विद अ गुड प्रोडक्शन। तो ये एक सिचुएशन है। हमारे इंस्टीट्यूट ने एक जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है, आप काइंडली इसको थोड़ा मैं 2 मिनट के लिए स्ट्रेस दूंगा। अ वंडरफुल टेक्नोलॉजी, आई गिवन नेम वंडर। वंडरफुल टेक्नोलॉजी हैज़ बीन डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑयल सीड रिसर्च, जो कि एक बायोपॉलीमर है। मैं आपको बता दूं, एक ग्लोबल लेवल पे पहली टेक्नोलॉजी है जिसमें जो एक बायोपॉलीमर को हमने जो डेवलप किया हुआ है फ्रॉम द एग्रीकल्चर वेस्ट, और उसको पेटेंट भी किया हुआ है। इसमें ब्यूटी ये है कि इट इज़ हैविंग वंडरफुल मल्टीपल इनपुट डिलीवरी सिस्टम। तो इससे क्या होता है कि आपको जो इनपुट चाहिए वो आप इसके अंदर है जो एक जस्ट लाइक ए मैट्रेस, उसके अंदर आप वो इनपुट को है जो फीड कर दीजिए। वो इनपुट आपको वो तब डिलीवर होगा जब क्रॉप को रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर सिचुएशन अगर आप देखते हैं तो ये जो ड्रॉट भी कंडीशन आती है, सैलिनिटी आती है, न्यूट्रिएंट्स आते हैं, पैथोजेंस, बायोटिक, एबायोटिक, सारी तरह की बीमारियाँ, कीड़े मकोड़े इस पर लगते रहते हैं। तो आप लेफ्ट साइड का कॉलम देखिए, डायरेक्ट सीड ट्रीटमेंट विद द मल्टीपल इनपुट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि अब तक सिंथेटिक पॉलीमर यूज़ किया जा रहा है। उसके आप एक बार एक इनपुट डाल सकते हैं, दूसरा इनपुट नहीं डाल सकते, उसके नेगेटिव इफेक्ट भी आ जाते हैं। ये जो राइट साइड कॉलम आप देख रहे हैं, मल्टी लेयरिंग सीड कोटिंग सिस्टम, इसके अंदर जैसे आपने ट्राइकोडर्मा डाल दिया, आपने जो राइजोबियम कल्चर डाल दिया, आपने जो कोई इंसेक्टिसाइड डाल दिया जो कि है जो सकिंग फेज के लिए शुरू में चाहिए, तो है जो ये एक इतनी वंडरफुल टेक्नोलॉजी आ गई है जिसको हमने जो पेटेंट, इसको भी पेटेंट कर रखा है और इसको हमने लाइसेंसिंग कर रखा है। काइंडली लुक इनटू दैट पाठक साहब जहाँ भी है, और इसको जो हमें हेल्प करिए कि हमें जो सीड ट्रीटमेंट अगर आप प्रॉपर करते हैं तो अगर आपकी इनिशियल ग्रोथ है जो क्रॉप की है जो इंश्योर कर देते हैं तो आपकी क्रॉप आराम से निकल जाती है। दिस टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग इन इंश्योरिंग गुड ग्रोथ अप टू 50 to 60 डेज। इनिशियल 50-60 डेज की क्रॉप आ गई तो आपको है जो आगे बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता है। और इसी के अंदर ये बायोपॉलीमर आप देखिए जो हमने रखा है, हाई रेटेड जर्नल में पब्लिकेशन आया, हमारा यंग साइंटिस्ट ने इस पर काम किया है और
उसके साथ में हमारा जो सीनियर लेवल के जो साइंटिस्ट है वो इन्वॉल्व होकर इसको मल्टी लेयरिंग सिस्टम है जो कन्वर्ट करके हमने इसको है जो आगे बढ़ाया है। और इस टाइप की जो टेक्नोलॉजी है, दैट एडॉप्शन ऑफ सच टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड एट द सीड लेवल, सीड प्रोड्यूसर लेवल। अगर आप क्वालिटी सीड, मैं इसको ये कहूँगा वैल्यू एडिशन ऑफ द सीड, क्वालिटी सीड आ रहा है, जेनेटिकली प्योर सीड आ रहा है, डॉक्टर के सिंह साहब ने बताया, और है जो वो सीड आ गया, उसका फर्दर वैल्यूशन कैसे कर सकते हैं, विद दिस टेक्नोलॉजी वी कैन डू दैट, सो दैट कि शुरू में जब सीड है जो अफेक्ट होता है सॉइल बॉर्न डिजीजेस से, उस समय है जो आपका है जो उसका सॉइल बॉर्न पैथोजन के लिए जो इनपुट डाल दिया। जब आपका सकिंग पेस्ट आता है 30 डेज के आसपास, तो वो इनपुट उस समय डिलीवर होगा 30 डेज के आसपास, और दैट विल टेक केयर ऑफ द सकिंग पेस्ट। तो इस टाइप से है जो हमारा क्लेम 60 डेज जाता है, बट टू बी कंजर्वेटिव 50 डेज भी अगर क्रॉप आ गई तो आपको 90-100 डेज में फर्स्ट क्लास क्रॉप आ जाती है। और हमने इसको अभी है जो चेक किया हुआ है, और आप ये देखिए ग्राउंडनट पे हमने इसका जो ट्रायल लिया हुआ है, ट्रायल कहाँ लिया, पहले फील्ड में लिया, उसके बाद में हमने फार्मर्स फील्ड पे लिया अंडर फार्मर्स प्रोजेक्ट। और वहाँ पे अभी फार्मर की हालत ये है, दे आर कमिंग टू अस, दे आर टेलिंग सर आप हमें ट्रीटमेंट करके दीजिए, और जो हम इसको अडॉप्ट करना चाह रहे हैं 30% यील्ड एडवांटेज हैज़ बीन रिकॉर्डेड। ये 30% यील्ड एडवांटेज ही नहीं है, इसके साथ एक बहुत ही हेल्दी क्रॉप है। और आपको पता है ग्राउंडनट का जैसे फॉडर यूज़ करते हैं, तो वो फॉडर की क्वालिटी भी है जो बहुत अच्छी होती है, जो उसको फ़ायदा होता है। आपका जो ग्रेन फिलिंग है, सीड फिलिंग है, अच्छा दाना बैठता है, शेलिंग परसेंटेज इसकी इंप्रूव हो गई है, और इससे ओवरऑल ऑयल यील्ड प्रोडक्टिविटी परसेंटेज इंक्रीज। तो एक वंडरफुल टेक्नोलॉजी मैं इस ग्रुप को अप्राइज करना चाह रहा था। मैं जो डॉक्टर के सिंह साहब से बात किया हुआ है, डॉक्टर महावीर भी यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग मिलके इसको सोयाबीन में भी है जो लगा सकते हैं। और इसमें सोयाबीन जो है उसकी भी सिचुएशन कोई ठीक नहीं है, वो भी अंडर नेग्लेक्टेड कंडीशन, अंडर रेनफेड कंडीशन, अंडर ड्राईलैंड इकोसिस्टम, अंडर मिनिमम मैनेजमेंट कंडीशन पे ग्रो करते हैं। तो वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो रही है। आप देख लीजिए, नोड्यूलेशन देख लीजिए, राइजोबियम कल्चर है, मार्केट में मिलता है, मिट्टी मिलती है, अंदर कल्चर कुछ नहीं होता है, स्पोर्ट्स नहीं होते हैं। तो अगर आप वही है जो कल्चर को है जो लो लेवल पे एफिशिएंटली आप इसमें है जो बायोपॉलीमर में डाल देते हैं, तो आपको नोड्यूलेशन बढ़ जाता है, क्रॉप ग्रोथ बढ़ जाती है, नाइट्रोजन फिक्सेस, सो मेनी गुड थिंग्स विल बी हैपनिंग। सो ये सारा है जो फील्ड है। आप ये देखिए जर्मिनेशन परसेंटेज एनएस बाई 12% और सो, एंड प्लांट विगर बढ़ गया। अगर प्लांट विगर बढ़ गया, इट इज जस्ट लाइक आवर जैसे बच्चे हैं, शुरू में अगर बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है तो बाद में उसको कोई है जो उसका इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है। सेम थिंग हैपनिंग हियर आल्सो। अगर आपका प्लांट का इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा दिया, आपने उसकी अच्छी हेल्थ कर दी, इट विल एबल टू टॉलरेट द बायोटिक एबायोटिक स्टेज विच इज लाइकली टू बी देयर आफ्टर द 50 डेज और सो। और इसके अंदर आप ये देखिए, ये हमारा लेटेस्ट जो वंडरफुल है जो रिजल्ट्स आए हुआ है, एंड फार्मर्स आर सो हैप्पी। नाउ वी आर स्प्रेडिंग अक्रॉस द क्रॉप्स। अभी हमने इसको है जो नेशनल लेवल पे जो दे दिया है अंडर AICRP सीड्स, इट इज बीइंग टेस्टेड ऑन द 5 डिफरेंट क्रॉप्स। सोयाबीन की ट्रायल्स ऑलरेडी हो गई थी। डॉक्टर महावीर इज हियर एंड डॉक्टर के सिंह इज हियर। वी कैन फर्दर सी दैट दिस टेक्नोलॉजी रियली वाइबल। और ये सिंपल है कि आपने सीड कोटिंग किया, और सीड कोटिंग करके उसको प्रोटेक्ट किया, और ये जो बायोपॉलीमर है, दिस इटसेल्फ इज हैविंग एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज। एट द सेम टाइम अगर आप इसमें इनपुट भी डाल दिया तो लेस कॉस्ट में है जो आपको हाई रिटर्न्स मिलते हैं। तो इट इज कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन कैन बी रिड्यूस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन बी रिड्यूस, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द सिस्टम कैन बी इम्प्रूव्ड, और इसके साथ साथ हाई यील्ड है जो किसान को मिलता है। ये फार्मर्स फील्ड का डेटा देखिए। और अभी मैं आपको बता दूं, जस्ट रिसेंटली आवर टीम ऑफ साइंटिस्ट वाज देयर इन जबलपुर, और जबलपुर में सिंह साहब हमने इसको जो सोयाबीन में भी लगाया है ट्रायल में इसमें। और सोयाबीन के अंदर ट्रायल के अंदर डेटा ये बता रहा है कि जहाँ पर 2 या 3 बार सोइंग करनी पड़ गई ड्यू टू एक्सिस रेंज दिस एंड दैट, इसके अंदर है जो सेम 1 टाइम सोइंग किया हुआ है, एंड क्रॉप इज वेरी हेल्थी। सो वंडरफुल रिजल्ट्स हैव कम। लेट्स टेक इट फॉरवर्ड टू द फार्मर्स, एंड लेट्स टेक इट forward to different stakeholders who can further help in contributing to this technology expansion. इसके साथ हम इसको अदर दूसरी क्रॉप में भी देख रहे हैं। अभी पोटैटो का रिजल्ट हमें मिल गया है, और पोटैटो क्रॉप में भी जो है जो लेट लिप लाइट है जो भी आते हैं, उसके अंदर भी है जो बहुत ही है जो यू कैन सी द क्रॉप। ये राइट साइड के 2 कॉलम देखिए, फर्स्ट इज द ट्रीटेड सीड, अदर वन इज द नॉन ट्रीटेड वन। सो मैं इसमें अभी ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा,
इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में ले सकते हैं, लेकिन 27th ऑफ दिस मंथ वी आर गोइंग टू कंडक्ट वन मीटिंग. Anybody is interested, you are welcome to there, and we are demonstrating that technology. We are explaining that technology. Different seed producers we have invited across the crops, and our directors also we have requested them to be there, so that this technology can be moved fast. We want to move fast to the farmers, so that our farmers get advantage, and it is a very good example for the sustainability aspect which was being talked, sustainability of the crop. Thank you very much. I'll go to next slide, just next presentation within 5 minutes. Next, please. Next PPT लगा दी. One more PPT I given. गवर्नमेंट पॉलिसीज है जो ऑयल सीड को क्या है, क्या नहीं है, क्या गवर्नमेंट सिस्टम बनाया है. मैं आपको एक बात बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ही रोबस्ट सिस्टम बनाया है. इस सिस्टम को जो अगर अपन फॉलो कर लेते हैं, एंड दिस इज मेनली डिपेंडिंग ऑन द सीड, क्वालिटी सीड. इफ क्वालिटी सीड इज टेकन केयर, डेफिनेटली ऑयल सीड प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड आत्मनिर्भरता बढ़ सकती है. हम इसका जो 1,25,000 करोड़ का जो इम्पोर्ट बिल है, हम इसको जो कम करते हैं, इसको नील कर सकते हैं. सो देर आर सस्टेनेबिलिटी आस्पेक्ट विच आर टॉक्ड in a previous session, but then I can tell you another point is that sustainability of the government policies is also required. आप आज है जो इंपोर्ट कर लेते हैं, कल है जो सपोर्ट करते हैं, भाई हम आपको ये करेंगे, और फिर फर्टिलाइजर इंपोर्ट करके आपने पूरा है जो सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया. सो गवर्नमेंट सपोर्ट सिस्टम आल्सो नीड्स टू बी सस्टेनेबल इन दिस. सो अभी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो है कृष्णवती योजना. अभी इसके अंदर में ये पूरा है जो प्रोग्राम चल रहा है, एनएमई ऑयल सीड प्रोग्राम. और इसके अंदर एक ब्यूटी ये है कि ट्रेसेबिलिटी इज द कंसेप्ट आल्सो, क्योंकि सीड कहाँ से आया, हु इज प्रोड्यूसर ऑफ द ब्रीडर सीड ऑफ द फाउंडेशन इज सर्टिफाइड सीड, वो सर्टिफाइड सीड फार्मर को किससे गया, कहाँ गया, दैट एवरीथिंग इज देयर इन दिस सॉफ्टवेयर. सो उसके अंदर ये फ़ायदा हो जाएगा कि ये जो गलत सीट दे दिया और भाग लिए, आप रफू चक्कर हो गया, ये सिस्टम अब नहीं चलने वाला है. तो उसके अंदर है जो इसी स्कीम के अंदर में है जो ये प्रोग्राम बनाया हुआ है, 10,103 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है ये. और सब मिशन में जो है इसमें कॉटन, राइस और टीबीओस, ट्री बोर्न ऑयल सीड, इनको भी इंक्लूड किया हुआ है. एट द सेम टाइम इफ़ यू लुक एट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस स्कीम, इसमें यह कि कुछ किसानों के पास भी इनोवेशंस होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट के पास इनोवेशन है जो फार्मर के खेत पे नहीं जा पाए. तो इसमें यह है कि हार्नेस ऑफ दिस इनोवेशंस कैन बी देयर, सो दैट अल्टीमेटली फार्मर इज गेटिंग बेनिफिटेड एंड द एंटायर प्रोग्राम. यस, इट हैज कम. और अर्ली मैच्योरिंग टेक्नोलॉजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जो भी क्रॉपिंग सिस्टम की बात करते हैं, हमारी जो वैरायटी आती है, दे हैव टू फिट इन दैट क्रॉपिंग सिस्टम. सो वी आर वर्किंग ऑन दैट. और इसमें एक ब्यूटी ये है जो कि हमारी बहुत बड़ी लिमिटेशन हो गई है, 5 years ओल्ड वैरायटी ओनली विल बी देयर इन सीड चेन. एंड जैसा डॉक्टर सिंह ने बताया, इट टेक्स 4 to 5 years टू कम आउट विद द गुड क्वांटिटी, सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ द सीड्स. तो इसके अंदर ये जो डिस्कशन चल रहा है, बट एज ऑन नाउ इसका फ़ायदा ये है कि आपका सीड रिप्लेसमेंट रेट आपका बढ़ जाएगा. सीड रिप्लेसमेंट रेट बढ़ गया, इसके साथ साथ वैरायटी रिप्लेसमेंट रेट भी बढ़ जाएगा. तो नई वैरायटी है जो फील्ड में आती जाएगी, पुरानी फील्ड है जो फील्ड से गायब होगी, फिर नई वैरायटी आएगी. तो इससे क्या होगा, जो डिजीज़ और पेस्ट का जो बिल्डअप होता है, उस बिल्डअप को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है. तो इसमें एक ये जो इसका जो कंपोनेंट है, और तीसरा सीड प्रोडक्शन सिस्टम को बहुत ही अच्छा बना दिया है, वो मैं आगे की स्लाइड में बताऊँगा. और जब तक वैल्यू चेन सिस्टम एस्टेब्लिश नहीं होता है, तब तक कोई भी सिस्टम आपका सस्टेनेबल नहीं होगा. सीड आप करिए, सीड ले आए, क्रॉप ले आए, और उसके बाद में मार्केट के ऊपर आपने छोड़ दिया और किसी ने परचेज किया, किसी ने परचेज नहीं किया, तो वो सिस्टम नहीं चलेगा. तो इसमें वैल्यू चेन पार्टनरशिप को भी है जो काफ़ी हद तक है जो सपोर्ट किया गया है. और इसके साथ साथ जो है सेकेंडरी ऑयल सीड्स को भी इसमें रखा गया है.
सो करीब है जो इसमें जो की एक्टिविटी जो प्लान की गई है, फॉर्मेशन ऑफ 600 प्लस वैल्यू चेन क्लस्टर्स। सो क्लस्टर अप्रोच में काम कर रहे हैं और इसके अंदर मान लो एक सेफ्लोर का क्लस्टर बना दिया, सोयाबीन का क्लस्टर बना दिया, तो उस क्लस्टर के अंदर उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी है अराउंड आई थिंक 100 हेक्टेयर एरिया और सो और 500 हेक्टेयर एरिया अंडर वन क्लस्टर, तो उसके अंदर क्या होगा कि आप है जो आराम से है जो मिलके एक ही जगह पर कंसंट्रेट करके और टेक्नोलॉजी को डिस्प्ले करते हुए जो काम कर सकते हैं। और उस क्लस्टर के ऊपर उन्होंने क्या किया है, वैल्यू चेन पार्टनर्स बनाए गए। ये वैल्यू चेन पार्टनर्स है जो कोई भी इंडस्ट्रीज हो सकती है, ये वैल्यू चेन पार्टनर कोई भी एफपीओ हो सकते हैं। तो उससे क्या होगा, किसान का जो भी प्रोड्यूस आएगा वो वैल्यू चेन पार्टनर जो है वो परचेज करके उसको है जो कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होगी, तो उसका मार्केटिंग को एज दे हैव बीन टेकन केयर। सो दैट इज अनदर ब्यूटी ऑफ दिस सिस्टम। सो नेशनल लेवल पे इसकी गवर्निंग एज काउंसिल बनाई गई है, इसके साथ साथ एज नेशनल लेवल पे स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है। तो जो एनआरजीसी है दैट इज हेडेड बाय एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहते हैं, और नेशनल स्टीयरिंग कमेटी जो है वो सेक्रेटरी डीएससी रहते हैं। और उसके साथ साथ इन्होंने जो मिशन डायरेक्टर्स है जो बना रखे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बना रखी है एट नेशनल लेवल, एट स्टेट लेवल, एवरीवेयर इट इज़ देयर। एंड देन द चीफ सेक्रेटरी एट स्टेट लेवल, चीफ सेक्रेटरी को रेस्पॉन्सिबल बनाया गया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। तो उसके अंदर क्या है कि ये जो चीफ सेक्रेटरी विल बी चेयरिंग एंड यू विल सी दैट व्हाट डिसीजंस आर टेकन दे आर इम्प्लीमेंटेड एंड फॉलोड। इसी टाइप से जो स्टेट लेवल पे मिशन अप्रोच में है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर को रेस्पॉन्सिबल बना दिया गया है। सो कलेक्टर विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोग्राम राइट फ्रॉम द सीड टू द वैल्यू चेन। इसके साथ साथ जो फंडिंग पैटर्न है आप सभी को पता है, आई थिंक इसमें बताने की जरूरत नहीं है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 90-10, 90 सेंटर एंड 10 स्टेट है, जबकि दूसरे स्टेट के अंदर है जो 60 सेंटर एंड 40% का है जो स्टेट का शेयर होता है। एंड सर्टेन कंपोनेंट्स आर फुल्ली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे ब्रीडर सीड है, CFLD है, ये 100% फंडेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, DSE का। सो और ब्रीडर सीड इज द बेस फॉर द further multiplication or further different stages of the seed. So value chain clusters की जहाँ तक बात आती है उसके भी इन्होंने जो बिल्कुल साइज और सब डिफाइन करके you can go through this. The advantage is that value chain clusters partners, they can be FPOs, cooperatives, public or private cooperatives, district executive committees will be there, will be responsible for the prioritizing the farmers in the collective mode. और इनमें अलग अलग रोल्स भी हैं, फार्मर को क्या करना है, सीड वाले को क्या करना है, फार्मर को क्या करना है, वैल्यू चेन पार्टनर्स को क्या करना है। सो एक्टिविटीज एंड दियर रोल्स हैव बीन वेल डिफाइंड, और मॉनिटरिंग सिस्टम भी रखा हुआ है। सो मॉनिटरिंग सिस्टम में डिजिटल सिस्टम रखा हुआ ताकि जो वी कैन रीच आउट एंड देन सी दैट व्हाट इज हैपनिंग, वेयर इट इज हैपनिंग एंड हाउ इट इज हैपनिंग। और अगर कहीं पे मिड सीजन कहीं करेक्शन करने की जरूरत है तो वो भी है जो दे कैन टेक केयर। Seed related investment, seed rolling plan is already there. It is in place now, and different agencies are there, different KVKs, seed hubs, FPOs, they are involved in all these things. Certified or truthfully, अभी truthfully seed का तो जो develop हो रहा है, but certified seed is there. It needs to be certified definitely, so that certification का मतलब ये है कि it is passing through different stages and it has been verified by the different agencies who are involved in that. और इसके अंदर एक सीड हब कंपोनेंट, जैसा सिंह साहब बता रहे थे, सीड हब कंपोनेंट दिया गया है। तो उसके अंदर है जो करीब 1.5 करोड़, टोटल 2.5 करोड़ का सपोर्ट सिस्टम है। उसमें क्या होता है कि सीड हब्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, दे विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ब्रीडर सीड, और वो जो ब्रीडर सीड इज द बेस फॉर द फर्दर मल्टीप्लिकेशन। इसके साथ साथ फायदा ये हो जाएगा, इनका सेफ स्टोरेज का कोल्ड स्टोरेज सिस्टम भी दिया गया है। So this is all value chain partners, and then post-harvest support system is also there. Demonstrations के लिए जो support system है, FLD का है, CFLD का है, कितना एरिया होना चाहिए, that is everything defined here. और particularly this crop is, oilseeds are being promoted under the fellows. Fellows means turmeric fellows, rice fellows. So वहाँ पे जो क्या करना चाहिए, उनकी मैनेजमेंट टेक्निक क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर भी काफ़ी कुछ है जो चर्चा हुई है।
लेकिन इसके साथ साथ जो फोकस है कि राइस के बाद में क्या क्रॉप लेना चाहिए, कहीं कहीं पे दो राइस क्रॉप ले रहे हैं, कहीं कहीं तीन राइस क्रॉप ले रहे हैं. इट इज़ अफेक्टिंग द सॉइल हेल्थ एंड ऑल दीज थिंग्स. इसके साथ साथ फार्मर को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन डिजीज और पेस्ट बिल्डअप भी हो जाता है. तो उसके अंदर भी जो इसके जो प्रोग्राम बनाया हुआ है, एंड देयर इज अ सपोर्ट सिस्टम वर्किंग ऑन दैट. और जहाँ तक माइनर वेजिटेबल ऑयल है, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, देयर इज definitely different roles have been identified, crops have been identified, and there definitely we can process through different components. फार्मर्स फील्ड स्कूल के बारे में एक है जो हमने जो जब ऑयल पंप पे भी काम कर रहा था उसमें हमने किया था कि फार्मर्स कैन बी इन्वॉल्व और प्रोग्रेसिव फार्मर्स कैन बी इन्वॉल्व इन फर्दर मैसेज और टेक्नोलॉजी टू बी डिसेमिनेटेड टू अदर फार्मर्स. तो उसके अंदर फार्मर स्कूल का क्या सेटअप है वो रखा हुआ देखिए आप. सॉइल हेल्थ एंड टेस्टिंग एंड दिस इज देयर, बट सम फ्लेक्सी फंड हैज बीन केप्ट which will be at the disposal of the project management committee which is chaired by the chief secretary. So उस flexi fund में what is the required as per the need also they can take decision. और जो project management committee होती है वो decision है जो implementable होते हैं, that has to be followed by all. So thank you very much. This was in brief, but you are welcome to Indian Institute of Oilseeds Research, Hyderabad. On 27th, we are organizing that meeting where wonderful technology which is there with us, we want to see that it goes to different stakeholders, particularly seed industries. So we are, if any seed industries here, kindly help us in promoting this technology at highest level, so that I will tell you, even more than 30% also yield advantage plus quality aspects also have been recorded by our institute. Thank you very much. Namaskar, Jai Hind. Check. Thank you so much, sir, for the useful knowledge, and we are going to use it in our field. And now, ladies and gentlemen, I know आप सभी लोग बहुत भूख लग रही है. I guess सभी लोगों को, कितने लोगों को भूख लग रही है? मुझे तो लग रही है. Can I see hands? Okay, I can see. All right, but उससे पहले I would like to welcome Mr. Naresh Goenka sir on the stage for the felicitation part. The Deputy Chairman SOPA. जितने लोग यहाँ पर हैं उतने लोग तालियां बजाएं देंगे. Come on everybody, तालियां हो जाएं. सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी डॉक्टर KH सिंह सर से कि वो आगे आए. डायरेक्टर नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट. He is a distinguished plant geneticist with nearly 30 years of experience in crop improvement, specializing in two major oilseed crops, rapeseed, mustard, and soybean. He is currently serving as the director of the ICAR National Soybean Research Institute. And now, my request करना चाहूँगी Mr. R.K. Mathur sir से please sir आगे की तरफ आएं. Director, ICAR, Indian Institute of Oilseed Research, Hyderabad. Former Director, ICAR, Indian Institute of Oil Palm Research. 2 varieties in groundnut, 4 hybrids in oil palm, registered 5 groundnut and 17 oil palm germplasm with NBPGR, New Delhi. Developed 16 farmers group for harvesting of bunches and chaff cutter in oil palm. Completed 2 projects in groundnut, completed 14 projects in oil palm and 05 consultancy project. With this everybody, we are taking lunch break. Thank you so much. Singh sir, thank you so much Mathur sir. So everybody, जितने लोग भी इंतजार कर रहे थे lunch break का, so it's your time. Please have lunch and come back as soon as possible. हम आगे के session की तरफ बढ़ेंगे. Thank you so much. Please be back by 3 o'clock. We are already running late. तो 3 बजे तक आ जाए. आगे के सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है. I'm sorry मैं थोड़ा lunch कट कर रहा हूँ, लेकिन 3 बजे तक प्लीज वापस आ जाएं. Thank you.